Morning, children. So in the previous class, we were studying about the taxonomy, and I said taxonomy is divisible into three parts. That is, first is identification, second classification, and third is nomenclature. And we have already done the classification and nomenclature. And identification is whenever a new species is there. Now the question is that how will you come to know whether this organism is already been identified or classified or not? Again, suppose this is a particular new organism. Mali, suppose this is a new organism. How will we come to know that this species will already identified or not? Whether it is already classified or not? If it is already classified, what is its name? So we got world is so big and there are so many species are being identified, so many species are being discovered. Okay, so it always poses a problem to us. So उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या होता है ना कि हमारे पास जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, that is whenever one used to get a telephone, so you used to get a telephone directory, and in the telephone directory you used to get the number of all those people who got telephone. ठीक है, everyone's number used to be there. आज तो privacy का रोना रो रहे हैं. आज तो हम किसी को अपना नंबर देना नहीं चाहते, whereas no one's number is hidden. And there are companies who are actually putting such condition, कोई फ्री में हर तरह का दिखाएगा, कोई फ्री में कोई चीज डिलीवर करने के लिए कहेगा, फ्री में सैंपल देगा, and they will take your phone number, they will take your address, they will, and maybe product come to you or it don't come to you, but you already given your this thing, all the details. Anyway, तो वो डायरेक्टली पहले सबके पास आती थी, वैसे ही एक डायरेक्टरी हमारे पास है. We have got a directory in which all the species which is already been described, their names are written, their classification is written and all. ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे ही हम किसी स्पीशीज को देखेंगे तो सबसे पहले तो अगर आपको पता है well and good, if it is not, then you have to go to get that book. ठीक है, and from there you will be reading it, है ना. तो देखिए मैं बुक शेयर करता हूँ, एनसीईआरटी, दिस इज द लिविंग वर्ल्ड, है ना, एंड इसके अंदर सबसे लास्ट पेज पे पहुंच जाते हैं. देखिए चैप्टर हैप्पीजार्ड पे लिखा है आई एम टीचिंग यू इन अ डिफरेंट वे. सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन की, है ना, द टैक्सोनॉमिकल की. तो ये क्या है, की क्या होता है? की किसको कहते हैं? किसी भी लॉक की चाबी, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को हम की कहते हैं. नाउ यहाँ क्या है प्रॉब्लम, whether this species is already been identified or not. So once you have that doubt, you have to open the key, you have to see this. अब वहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, there are set of questions and उनके आंसर जो है वो जनरली दो में होते हैं. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग इट विल बी आस्क्ड whether it is microscopic or large enough to be seen. naked eye से दिख रहा है या microscopic. If microscopic, go to page number so and so or volume number so and so. If it is large enough, go to volume number so and so. Second question, हमने कहा सर ये तो बहुत बड़ा है तो दिख रहा है. Then the second question, whether it is green or non-green. तो हमने कहा कि जो green तो नहीं है, down है. So if it is green to go to so and so page, if it is non-green to go to so and so. ठीक है, green हो गया मतलब plants के लिए अलग है. If it is not, अलग है. Now different questions will be asked. Different questions will be asked. ठीक है, whether it has got vertical column or no vertical column. If it is vertical column is there, you will be asked to open to so and so, इसमें coordinates को describe करें. ठीक है, if it is not there, then you will be asked to take to the so and so page number जहाँ पे non coordinates को describe करें. Then again there will be some questions. Say for example ये coordinate. अब मान लीजिए आपको बकरी और गाय के बीच का कोई स्पीशीज मिला है जो आज तक कभी नहीं एग्जिस्ट करता, आपने कभी इसके बारे में न सुना न पढ़ा न कुछ. तो अभी वो क्या था, दैट वाज लार्ज इनफ, तो उस पेज पे गए. देन इफ इट इज ग्रीन और नॉन ग्रीन, इट वाज नॉन ग्रीन. देन द वर्टिकल कॉलम की यस, तो कोऑर्डिनेट वाले में स्टार्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास में 5 किंगडम्स आते हैं, 5 फाइलम्स आते हैं. दैट इज क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स के अंदर? We got species, we got amphibians, we got reptile, we got birds, and we got mammals.
तो और क्वेश्चन हमारा वो क्या पूछ रहा है कि whether it is have a scale on the external surface और इसका बॉडी चिकनी है या इसकी बॉडी के ऊपर ड्राई स्किन, whether they got feathers or wings, whether they got hair on their body. तो आपने कहा hair, so it will take you to a certain page. ठीक है, then it will ask for the next question. ठीक है, कि वो कार्निवोर है कि हर्बीवोर है, तो आपने कहा था वो तो हर्बीवोर है, घास फूस खा रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन पूछेंगे कि वो रूमिनेंट है, मतलब वो कटिंग करता है नहीं करता है, तो आपने कहा कटिंग तो नहीं कर रहा है, तो इट विल टेक यू टू सम अदर थिंग. तो page by asking question, it will take you to a certain thing, and if this is already been described, at the last this thing will be there. If it is not been described so far, it will be something new. So then you will have to identify. तो वो है केस आइडेंटिफिकेशन का. हाउ विल वी आइडेंटिफाई, हाउ विल वी identify a species, whether it is already known to us or it is something new, and if it is something new, then where it will be placed. दोनों क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफिकेशन की में मिल रहा है. If it is already been described, you will get it. वो क्वेश्चंस के आंसर देते जाओ, finally you will get the description of that animal. You will get a page on which this animal is being described. May it be animal, may it be plant, may it be microbe, may it be whatever it is. That will be described. Description will be there with the picture and with all the description. Sorry, if it is not so, then you are already reached there where it has to be placed. Because all this identification is going according to our classification. So पहला क्वेश्चन था माइक्रोस्कोपिक या लार्ज, तो आपने कहा माइक्रोस्कोप नहीं है, लार्ज. लार्ज के बाद वो पूछ रहे कि वो ग्रीन है नॉन ग्रीन है, क्या आपने कहा नॉन ग्रीन, मतलब प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम आ गया. अब एनिमल किंगडम में देन अगेन यू आर गॉट क्वेश्चन वेदर इट इज अ वर्टिकल कॉलम और नॉट, तो आपने कहा वर्टिकल कॉलम, तो आप कोऑर्डिनेट्स में आ गए. कोऑर्डिनेट में अगेन तो क्वेश्चन पूछा कि बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, तो आपने कहा हेयर, तो आप मैमल्स में आ गए. मैमल्स में आपसे फिर पूछा कि वो कार्निवोर है कि नॉन कार्निवोर है, हर्बीवोर है, तो आप हर्बीवोर आ गए. ठीक है, फिर वहां पे आपसे पूछ रहे कि वो रूमिनेंट है नॉन रूमिनेंट है, आप नॉन रूमिनेंट का. तो धीरे धीरे आप आंसर देते जाए और आपका क्लासिफिकेशन तैयार. So finally you will reach into the place where you have to place it. आपका क्लासिफिकेशन भी पूरा तैयार है and you are already identified. Now the last thing is you have to give the name of a species. तो स्पीशीज का नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर का मेथड हमने पढ़ लिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बस जीनस नेम, जीनस तक तो हम पहुंच ही गए. स्पीशीज का नाम देना है, स्पीशीज नेम यू आर फ्री टू गिव. अब आप नाम देंगे तो आप तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, रमेश, सुरेश, क्षितिज, कुछ ऐसा नाम भी दे सकते हैं जो किसी से प्रोनाउंस से नहीं होते. तो फिर क्या होगा, आफ्टर गिविंग द नेम, आफ्टर गिविंग इट अ नेम, यू विल हैव टू सेंड इट टू सम ऑफ द एजेंसी. वो है आईसी या ICBN, IUBN जो भी है ना, यहाँ पे अपन ने नाम पढ़े थे. कहाँ ये ICZN, ICBN क्या है, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. अगर वो प्लांट होता तो उनके पास भेजना पड़ेगा. इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, अगर वो बैक्टीरिया है. इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो हमारा क्योंकि एनिमल है तो हम उसके पास भेजेंगे. एंड दे विल हैव टू रिकॉग्नाइज इट. तो वो बताएंगे क्या भाई जो नाम आपने दिया है एज पर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर स्टैंडर्ड, इफ द नेम इज करेक्ट एंड इट शुड बी गिवन. तो वो बोलेंगे नहीं कि भाई ये नाम तो पहले से ही है, एग्जिस्टिंग है, या फिर कि नो दिस नेम हैज गॉट सम प्रॉब्लम बिकॉज़ द प्रोनाउंसिएशन एंड द स्पेलिंग आर समथिंग डिफरेंट व्हिच विल बी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू रिमेंबर इट. सो आप इसको चेंज कीजिए. तो दीज आर द एजेंसीज which are giving the name to the biological nomenclature. ठीक है, तो I think it is clear to you हम कैसे किसी species को पहचानेंगे, how will we recognize. So the classification method is there, how the classification is there, and what are the parts of the classification. Then we also studied taxa, and we have
We have studied about the taxonomic class categories. तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले kingdom होता है, then phylum, then class, then family, then order, then genus, and last में species होगा. So these are taxonomic categories. हम taxonomic categories पढ़ते हैं class में. The classification is not a single step process, but it involves hierarchy of the steps in which each step is representing a rank or category. तो जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, how we are identifying a child in a school or a person in a colony or in a country. आपके घर में आपने Amazon ग्लोबल से कोई सामान मंगाया ना, Amazon ग्लोबल के देयर वर डिपोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपने एक पर्टिकुलर टाइप का मोबाइल मंगाया जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं मिलता, ठीक है. Maybe that mobile will be delivered to your house from Malaysia or from Germany or from Vietnam or from America. So they must know what is your exact location. तो वो आपसे एड्रेस पूछेंगे. एड्रेस क्या है? आपको अपना नाम लिखना, देन आपका गली का नाम लिखना, मकान नंबर लिख के गली का नाम लिखना, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलोनी, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सिटी, है ना, देन डिस्ट्रिक्ट, देन कंट्री. तो उससे हमारी हायरार्की हो जाती है, हमारी लोकेशन पता. Same is true with the animal or plant, whatever species we are choosing. This is kingdom. पूरी दुनिया के अंदर इसकी पोजीशन क्या है? Kingdom, the entire world. Okay. Then we go to phylum. A kingdom may have many phylum. There are 5 kingdoms we are studying now, but दुनिया में other countries में 7 kingdom classification is already in use. So since we are studying the old 15-year-old book, so we are studying that 5 kingdom classification. And what are the 5 kingdom? मैं explain देता हूँ, जैसे आपको पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा. What are the 5 kingdom? Monera, Protista, then fungi, plantae, and animalia. So these are the 5 kingdoms. These are the 5 kingdoms. You may not be able to see. Monera, Protista, fungi, plantae, and animalia. 5 kingdoms. In the 5 kingdoms, for example, what you are talking about that particular animal. So, phylum and animalia. In the phylum, then you will have to go to class, whether they are carnivora or they are herbivora, जो भी है. तो उसमें आ गए. क्लास के बाद किसमें जाएंगे हम? ऑर्डर में. ऑर्डर के बाद किसमें जाएंगे? फैमिली में. उसके बाद किसमें जाएंगे? जीनस. देन किसमें जाएंगे? स्पीशीज. ठीक है. लेट्स गेट सी. ठीक है. तो स्पीशीज तक तो आप यहां तक हो. So these are the categories. These are the categories in which we place the organism. So it become very easy for us. अब इसका क्या फायदा हो? इसका क्या फायदा हो? Now remember the classification. बिना classification का हम पढ़ रहे थे. फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया था कि भाई हमारी उम्र 100 साल की है, 100 years, and we have to start from the first day, the day we born. From that day till the death day, and we have to learn somewhere about 60 species every day. तब कहीं दुनिया में वो जो 20 लाख स्पीशीज उनको हम पढ़ पाए, which is impractical method. उसके बदले हमने क्या किया? हमने क्लासिफिकेशन कर दिया. And now we have to just learn the classification. Now suppose you have learned the classification. मान लीजिए मैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर पैथर की बात करूं, लाइन की बात करूं, जियो, तो ये किसमें आएगा? पैंथेरा. पैंथेरा किसमें आएगा? कार्निवोरा. वो डॉग फैमिली को रखेंगे. यहाँ से शुरू करते हैं. किंगडम, एनिमल, फाइलम, ऑर्डेटा,
ये कॉर्डेटा के अंदर मैमेलिया, यहाँ कार्निवोरा, यहाँ कैट फैमिली होती है, कैट फैमिली को लिखेंगे, कैट फैमिली, ठीक है। फिर उसमें आया पैंथेरा एंड देन ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द क्लास। नाउ अब आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमलिया वी ऑलरेडी नो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। किनको हम एनिमल्स कहते हैं? किनको हम एनिमल्स कहते हैं? एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, पहली बात, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दे कैन नॉट मेक फूड ऑफ देयर ओन, ठीक है। देन दे आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म which depend on other organisms for their food, and they lack cell wall, कोई सेल वॉल नहीं, उनमें कोई प्लास्टिड नहीं है, उनका सेल जो होता है वो रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, दे गॉट सेंट्रोसोम, दे गॉट लाइसोसोम, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। कॉर्डेटा की बात करते हैं तो फिर हम कौन सी बात कर रहे हैं? विच एनिमल? एनिमल व्हिच हैव गॉट नोटोकॉर्ड, एनिमल व्हिच हैव गॉट नोटोकॉर्ड, एनिमल व्हिच हैव गॉट नर्व कॉर्ड, एनिमल व्हिच हैव गॉट पोस्ट एंडल टेल, एनिमल व्हिच हैव गॉट pharyngeal gills, animals in which the heart is located in the ventral side, chordata। तो देखिए आपको पूरा कुछ याद करने की जरूरत है, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। कॉर्डेटा बोलते ही आपको इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। मैमेलिया बोलते ही आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि दे गॉट एक्सटर्नल पिन्ना, they got hair on their body, they got mammary glands to feed their young one, and they give birth to the young, and they are having four chambered heart, and they are breathing with the help of lungs, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ गई है ना। they got double circulation, they got very advanced type of sensory system, they got good type of क्या कहते हैं brain and all other चीजें। तो कितनी सारी चीजें हमको मालूम पड़ गई। कब बात करते हैं? मैमेलिया बात करते हैं। कार्निवोरा की बात करते हैं, हमको दिमाग में आ जाएगा सब ये तो मांसभक्षी, ठीक है। and then cat family we already know that what cat family look like and what they do, फिर पैंथेरा आ गया, ठीक है। लास्ट में so this will be a very easy classification, you will not have to learn each and everything। वो किसी स्पीशीज में मिलने वाले 60-70 कैरेक्टर्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मगिफिकेशन, व्हाट यू मस्ट नो इज ओनली क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन भी पूरा याद करने की जरूरत नहीं, because now when you see at an organism at once you come to know, ठीक है। तो सपोज वी हैव सीन एन इंसेक्ट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा है जमीन पे मिल रहा है आपको, उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? यू हैव सीन दैट इट्स एन एनिमल, इट हैज गॉट 3 पेयर ऑफ एपेंडिक्स, ठीक है। तो बस ये दो साइन काफी है आपके लिए, देन यू विल कम टू नो जैसा भी एनिमल है तो एनिमल वाले सारे आपके दिमाग में। नॉन कॉर्डेट है, ये कॉर्डेट अभी हमारा जानवर लियो जो था वो कॉर्डेट था, लेकिन इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो जैसा नॉन कॉर्डेट है। It will not have a notochord, it will not have a notochord, it will not have pharyngeal gill, it will not have poststernal tail, it will have its heart, ठीक है। वो कैसा रहेगा मतलब उसका चैम्बर भी नहीं कह सकते, चैम्बर भी, ठीक है। फिर आप उसको ले आए किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा कौन से हैं? The organism with the jointed appendices. Now no sooner you say that it is the arthropoda, you are very much clear with some of the facts that they will have open blood circulation, they will have exoskeleton made up of chitin, they have got jointed appendages and all, ठीक है। फिर आपने देखा वो तो इंसेक्ट है, तो नीचे आ गया आप इंसेक्ट। आप इंसेक्ट कौन होंगे? the one which have got 3 pair appendages, and they got internal fertilization but they lay egg and all, बहुत सारी चीजें आपके समझ आ गई। तो इतनी चीजें तो आपको पढ़नी नहीं पड़ी। no sooner you saw insect, you could already said these many things, you need not to learn them, mug up them। that is the beauty of a classification, that is the beauty of a classification, ठीक है। तो हम इसीलिए पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से हमारा स्टडी सिंपल हो जाता है, बुक में लिख देने से कुछ नहीं होता है। देख लीजिए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से आपका वर्क सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हुआ है कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ ना भाई? आपको पूरी चीजें 60-70 कैरेक्टर थोड़ी याद करने पड़े। You need to learn all those 50-60 characters which an organism possesses. Most of the character, finally एक species level के character आपको याद करना, genus level तक के character आपको शायद already existing होंगे, याद होंगे आप। So you have to learn finally only the species level character.
ठीक है. So that is why we classify, and that's why the hierarchy of the classification is there. So we are studying about the hierarchy of classification. तो अब मैं फटाफट से एक हेडिंग वो दिखा देता हूँ क्लासिफिकेशन की. हो गया. स्पीशीज भी ऑलरेडी स्टडीड. क्या होते हैं? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एनाटॉमिकली सिमिलर, दे हैव गॉट सेम टाइप ऑफ बिहेवियर, दे गॉट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, and they got an ability to interbreed. Now, the several closely related species may come together under one genus, like lion, panther, tiger. ना ये सब एक दूसरे को बहुत मिलते जुलते हैं. चूहे हैं, बहुत सारे तरह के चूहे होते हैं. ठीक है, उनको सबको हम रैकस के अंदर डाल देंगे. ऐसे लोकस्ट वगैरह है, वो कई सारे एक जैसे होते हैं, है ना. लोकस्ट है, वो छोटे मोटे टिड्डी है, झिंगुर है, ये है, उनको सबको हम एक जीनस में डाल देंगे बिकॉज दे आर कॉमन ओरिजिन. देन उनसे ऊपर जाकर के फैमिली है. फैमिली में उनसे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब द ऑर्गन व्हिच हैज सिमिलरिटी विद द मतलब द ऑर्गन व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू द जीनस, बट several families, several genus will come together in the family. ठीक है, and several family will come together in a order, and several order will come together in a class, and several classes will come together in a phylum, and phylum is kingdom. So kingdom is the largest category which got the maximum number of organisms but least similarities among them. The similarity among the members of one kingdom are least. अगर हम कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम, नाउ एनिमल किंगडम बोल देने से क्या होता है? एनिमल किंगडम में तो आपको सिंपलेस्ट ऑर्गन भी मिलेंगे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी मिलेंगे. उसमें तो मैमल्स भी मिल रहे हैं, उसमें तो इंसेक्ट भी मिल रहे हैं, उसमें तो क्रीपर्स भी मिल रहे हैं, उसमें तो स्विमर्स भी, पानी में तैरने वाली मछलियां भी मिल रही हैं, उसमें तो रेप्टाइल्स भी मिल रहे हैं, तो उसमें तो आर्बोरियल एनिमल भी मिल रहे हैं. सो किंगडम जो है, दे आर इंक्लूडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द लीस्ट सिमिलरिटी. एंड स्पीशीज जो होगी वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को इन्वॉल्व करेगी विद द मोस्ट सिमिलरिटी. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज आर मोर और लेस सेम, बट द मेंबर्स ऑफ ए किंगडम दे शो ड्रास्टिक डिफरेंसेस अमंग देम. ठीक है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन की कैटेगरी हो गई. तो उस कैटेगरी में क्या है? किंगडम आर द लार्जेस्ट कैटेगरी and the species like smallest category. Kingdom include maximum number of individuals, species will include minimum number of individuals. Kingdom will have least similarities, species will have most similarity. Members of one kingdom not necessarily always capable of breeding. Members of a species most probably they will breed with one another. वो जो वहां पे उनको ब्रीड करने से रोक रहे हैं, वो कुछ ही कारण हो सकते हैं. मे बी द एज, मे बी द सीजन, मे बी द पोटेंसी कि वो इम्पोर्टेंट हो, या फिर वो हो सकता है कि वो हमें किसी और कारण से. ठीक है, तो यही हो सकता है. लेकिन किंगडम के सारे मेंबर आपस में ब्रीड कर लेंगे तो समझने की बात है ही नहीं. हाउ कैन यू इमेजिन एन अर्थवर्म कैन ब्रीड विद अ लायन और लायन? Can you ever imagine that a fish will breed with a sparrow? ठीक है, तो किंगडम में तो आ रहे हैं फिश एंड स्पैरो बोथ. किंगडम में तो आ रहे हैं दैट अर्थवर्म एंड लायन. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो किंगडम में तो बहुत सारी डिफरेंसेस मिलेंगे. फाइलम में थोड़े कम, क्लास will have all the more similarities, then order will have all the more similarities, and the family, and finally genus, which include the related species and the member of a species. हमने already पढ़ लिया कि उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या है. So they are the most similar organisms. The member of a species, they are morphologically alike, anatomically alike. They have got same number of same type of behavior. Again, same number of chromosomes, and ultimately, if all the conditions are suitable, they can even breed. Now that doesn't mean that you take 2 female individuals and ask them to breed, 2 male individuals, or a young one and a bacha है, maybe reproductive maturity one. Now you can ask them to breed, और वो कहते हैं breed नहीं कर रहे हैं, सब ये breed नहीं कर रहे हैं, तो ये अलग species का. तो थोड़ा हमने कहा कि थोड़ा इसका भी रोल है. ठीक है, you have to use brain. So I think everything is clear. Now I have to teach only 4 taxonomic aids. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्लासिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं. क्लासिफिकेशन करने वाले ने तो कर लिया,
अब स्कूल के बच्चे हैं, अब हम उनसे बोलेंगे हिप्पो कैंपस होता है, फोटो छाप दिया, तो फोटो से आप कैसे पहचानेंगे? डू यू नो दैट हाउ बिग द हिप्पो कैंपस इज बाय लुकिंग एट द फोटो? अभी मैं इसको और बड़ा कर दूंगा तो आपको लगेगा हिप्पो कैंपस इतना बड़ा होता है। कहाँ गया वो मेरा हिप्पो कैंपस इतना बड़ा होता है। अगर किताब में छोटा सा बन रहा होगा तो आप कहेंगे कि हिप्पो कैंपस इतना सही होता है। भाई फोटो इज नॉट अ क्राइटेरिया, फोटो इज नॉट अ क्राइटेरिया। फोटो तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो यू तो डोंट इवन सी द कलर। ठीक है, सपोज अ प्लांट लीफ इज देयर, हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज द शेप ऑफ द लीफ, साइज ऑफ द लीफ, टेक्सचर ऑफ द लीफ? ठीक है, एग्जैक्टली तो पता पड़ ही नहीं रहा। तो इसलिए पिक्चर इज नॉट अ सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं 4 फोटो दिखा रखी है, 4 फोटोग्राफ्स। छोटा कर देते हैं। अभी ये देखिए, इसको कहते हैं गेंडा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस, कैंपस तो वहां था, ये हिप्पोपोटामस। दिस इज अ स्वान, दिस इज एन एलिफेंट, दीज आर लाइन। पिक्चर के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा इसमें हिप्पोपोटामस है, लाइन तो बहुत छोटा होता है। और स्वान और वेव, स्वान जो है वो लाइन से भी बड़ी है। लुकिंग एट द पिक्चर, सपोज यू हैव नॉट सीन दीज बर्ड्स, दीज एनिमल्स, हैव यू नेवर सीन दीज एनिमल्स और बर्ड्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है? और बड़ी बोल रही यार, ये हाथी से भी बड़ी है, 3-4 गुना बड़ी है, हाथी तो बहुत छोटा है। दिस एलिफेंट कैन फिट ओनली इन दिस मच ऑफ रीजन, यहाँ से यहाँ तक के अंदर ही फिट हो गया। तो ऐसे तो हम 3-4 रीजन और बना सकते हैं, एक रीजन यहाँ आ जाएगा, एक रीजन यहाँ, एक रीजन, तो 4 हाथी के बराबर का एक स्वान। और लाइन ये तो थोड़े ठीक ठाक है, इंटरमीडिएट, बट हिप्पोकैम्पस भी will be almost equal to 2 or rather 2.5 लाइन। ये कोई करेक्ट वो नहीं दे रहा है, इसलिए हमने क्या किया, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? हमारे शहर में एक जूलॉजिकल पार्क है जिसको हम सादा भाषा में चिड़ियाघर कहते हैं। देखिए चिड़ियाघर तो क्या है, वो जब वो आए थे ना मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में, so they had plenty of times, so they used to rear these birds, मैना, तोता और मुर्गे, कड़कनाथ। ये वो मुर्गे होते थे, उनको लड़ाते थे, they used to train them, so they used to have a lot of birds, variety of birds in their houses, केज में, तो उससे नाम पड़ गया चिड़ियाघर। अभी चिड़ियाघर के अंदर चिड़ियाएं भी इक्का दुक्का ही रहती है, स्पीशीज में मोस्टली तो एनिमल्स है, so we are wrongly using that term. So these are actually zoological parks. Now what is the advantage of zoological park? You can go to the zoological park and see that what an animal look like, what its behavior is, how they make noise, what they eat, how they walk, where they live, whether they go in water or on outside. बहुत सारी चीजों को आपको उसकी नॉलेज मिल जाती है when you go to zoological park. So zoological parks are a better way to explain species than the simply photograph. ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉटनिकल पार्क गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से बोटेनिकल गार्डन है, जिसको हमने कहा है हावड़ा। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नाम याद रखिए, 3-4 नाम दे रखे हैं यहाँ पे, उनको याद रखिए। देखिए दे आर लेबल एज द बॉटनिकल साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पीशीज। वहाँ पे क्या बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रहेंगे, एरिया वाइज दे मेक एन एरिया दे मेड व्हिच इज टोटली डेजर्टेड, वहाँ पे सैंड डाल देंगे एंड ऑल दोस प्लांट्स विल बी ग्रोन एंड नोबडी विल गो टू पुट वाटर देयर। इक्का दुक्का टाइम में बारिश आ जाती है, बाकी पानी को रोक देते हैं। तो दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्या कहता है डेजर्ट। In that same botanical garden, they create a range of environment. वहाँ इतना वो पानी डालेंगे वो क्या कहते हैं फाउंटेन से, कि वो हमेशा गिले रहेंगे, and there those plants will be grown. ठीक है, there are some other plants which are grown in the water, aquatic plants. There are some plants which are grown as xerophytes. There are some plants which are grown in the soil, salty soil, कुछ rocky area में, कोई क्या
और आपको वहां पे जाना है, देखना है, और हर प्लांट के साथ में उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, their description is written. So you just go there and you will get the entire idea. The specialized garden that I have collected all the living plants for reference. Plant species in which the garden are grown are identification purpose. Each plant is labeled identifying its botanical or scientific name and family. ठीक है, उसके बारे में आगे चीजें भी लिख सकते हैं, व्हाट देयर एडवांटेज, व्हाट डिसएडवांटेज, व्हिच प्लेस दे आर फाउंड एंड ऑल। ठीक है, तो हमने ये दो पढ़ लिए। तीसरा है म्यूजियम। ना म्यूजियम में तो कोई जिंदा चीज नहीं रखते, जिंदा चीज रखेंगे तो म्यूजियम थोड़ी कहता है। आप कभी म्यूजियम में गए? कोटा में म्यूजियम है। म्यूजियम में क्या है, वो राजे महाराजे चले गए, उनके हथियार रखे हुए हैं, what type of fan they used to use, what type of सिंहासन they sit on, ठीक है, what type of, would they already killed some of the animals, they are stuck and they are stuck onto the wall, so you can see them, you can see some of the pictures, you can see their costumes, you can see their vehicles, है ना, उनका रथ हुआ था, ये सारी चीजें। तो म्यूजियम में सारी मरी हुई चीजें रहती है, मतलब कोई नॉन मतलब लिविंग चीजें नहीं। हम भी क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन के लिए, देयर आर सेवरल स्पीशीज व्हिच वर प्रिजर्व्ड इन formaldehyde and used to be kept in this. So suppose I ask you, ये स्कोलेडॉन सर ये क्या होती है? हमने कहा डॉग फिश, तो आपके दिमाग में आया फिश हो गया, उसका मुंह कुत्ते जैसा होगा। नहीं 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 नहीं, ये सब नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। सिल्वर फिश कोई सिल्वर की थोड़ी बनी होती है, गोल्ड फिश कोई गोल्ड की थोड़ी बनी, नाम में क्या है, नाम तुम कुछ भी दे सकते हैं। सो यू हैव टू लुक दिस इन द म्यूजियम। So in the museum there are bottles, in the bottles they are preserved and they are, ठीक है। सो ये तीन चीजें होंगी, और चौथा की है, की मैंने आपको पहले ही पढ़ा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ, ये एक हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट्स को, स्पेशली लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, उनको हम जाते हैं जंगल में, हमने कोई पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लिया, वेस्टिब्यूल करके एक छोटा सा हमारा एक फंड होता है, एक बॉक्स होता है, इसके अंदर रख देते हैं, सो दैट द मॉइस्चर इज नॉट लॉस्ट, सो दैट दे विल नॉट लूज देयर कलर। लीव्स मेनली, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स इफ स्मॉल, ठीक है, और बाकी हम स्केच कर लेते हैं। देयर इज अ हर्बेरियम शीट, करीब 21 इंच चौड़ी और करीब 11 इंच चौड़ी होती है, 21 इंच बड़ी होती है। उसके ऊपर पूरा ऊपर की तरफ क्लासिफिकेशन प्रिंटेड होगा, we'll have to just fill it, kingdom, class, phylum, वो सब लिखा हुआ, you have to write what are these things, and these leaves and flowers and other part which you bought from there, that has to be kept between the filter paper, and the फल का वेट रखेंगे, डे बाय डे हम उसको वेट बढ़ाते चलेंगे। So what happens that whatever moisture is there, that will come out and that will be absorbed by this filter. So they keep on losing their moisture, है ना? इससे क्या होगा कि they will not lose their color and their texture, and now we can file them on these sheets, herbarium sheets, and we can make files according to their classification, according to their nature and all, ठीक है। So this gives the first hand information। आपको स्कूल में पता करना है कि भाई खजूर की पत्ती कैसे होती है, टीचर ने तो बना दिया ऐसे 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 होती है, हर टीचर को पेंटर थोड़ी होता है, आर्टिस्ट को होता है, तो वो आपको दिक्कत देता है। तो हर्बेरियम म्यूजियम के अंदर क्या, यू गेट टू सी दीज थिंग्स इन रियल, ठीक है। सो दैट इज हाउ दीज आर हेल्पफुल फॉर अस टू स्टडी द लिविंग। So with this we come to the end of the chapter. Tomorrow we'll start new chapter, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप इसको पढ़िए, इसको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे। अरे रेस्पॉन्ड करना होता है। ऑल ऑफ यू आर स्पीकिंग। सो हमने ओके गुड, नो प्रॉब्लम, हम तो टीचर हैं भाई, हम तो बोलेंगे। गुड डे।